Hello and welcome all to another session of Stroke Support India Open House. Today we have Dr. Amit Sahu with us, and we're going to talk about options in early stroke treatment and requirements of stroke-ready hospitals. Dr. Sahu has about 10 years of experience in the field of interventional radiology with extensive experience of treating patients related to neuro, body, and peripheral interventions. He's presently consultant at Lilavati, Wockhardt, Raheja Group, Global and Fortis in Mumbai, as well as assistant professor in interventional radiology and faculty at national conferences of Indian Society of Vascular and Interventional Radiology. And he has trained both at Kokilavin Hospital and Johns Hopkins Hospital, USA. So today we'll be talking about stroke treatment, early stroke treatment. We'll be talking about stroke-ready hospitals, unki kya requirements hain, and this will be a mix of Hindi and English, hopefully to the extent possible, so that it's accessible to more people. Roughly about 20-25 minutes of talk, and then followed by a short Q&A, and then we'll take it from there. So over to you, Dr. Amit. And I'm going to stop my video and I'll be in the background also somewhere. Over to you, Dr. Amit. Thank you so much for the introduction. A very good evening to everyone. So I'll just share my screen. Okay, so is my screen visible to all? Yes, it is to me. I think to everyone else also it should be likewise. Okay. So basically what I will do is I will discuss in brief about the types of strokes, about the hospital who are treating strokes, what basic requirements that they should have, and what are the different treatment options in different types of strokes. So I will try to keep it as simple as possible and keep Hindi, English, and at any point anyone can stop me and ask questions then and there, so that it makes it more to and fro rather than a one-way sort of a talk. So ये तो stroke group में almost everyone will be aware. I will just briefly review it. How to spot a stroke. सबसे कॉमन साइंस स्ट्रोक के क्या होते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है निमोनिक, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बी फास्ट, जिसमें बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस. अगर किसी को आपको दिख रहा है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या तो सडनली बैलेंस बिगड़ गया है, दैट इज एक साइन स्ट्रोक पेशेंट को हो सकता है. सेकंड है आईज. सडनली एक आंख से विजन चले जाना, एक आंख के सामने थोड़े टाइम के लिए अंधेरा हो जाना, या तो फिर दोनों आंखों में विजन चले जाना, या देखने में कुछ डिफिकल्टीज आना, ये अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो स्ट्रोक पेशेंट्स को हो सकते हैं. एफ स्टैंड्स फॉर फेस, जिसमें एक साइड के फेस में ड्रूपिंग होने लगता है. वो अगर स्माइल करने बोलेंगे तो एक साइड का फेस डेविएट हो जाएगा, दूसरे साइड का ड्रूप रहेगा, वहां का लाइन भी उनका फ्लैट दिखेगा. आर्म्स, पेशेंट को अगर आप बोलेंगे कि सामने दोनों हाथ रखिए, एक साइड का हाथ वो मे भी बहुत देर तक पकड़ नहीं पाएंगे, या तो उनका वीकनेस हो जाएगा एंड धीरे धीरे उसमें डेविएशन होने लगता है. सिमिलरली पैर में भी वीकनेस होगा तो बैलेंस जाएगा, वॉक करना डिफिकल्ट रहेगा, या बिल्कुल भी स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे. एस इज फॉर स्पीच. पेशेंट अगर क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज में उनके बात करने के तरीके में चेंज आ गया है, लड़खड़ा रही है जबान, या तो आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, या वो बहुत कंफ्यूज से लग रहे हैं, दैट इज फॉर स्पीच. एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम. ये इनमें से कुछ भी सिम्टम्स अगर अपने को दिखता है किसी को आते हुए, then T is the time that we should immediately rush the patient to the hospital. जो भी closest hospital है वहां लेके जाएं ताकि डॉक्टर्स अटेंड कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली स्ट्रोक है, कुछ और कारण है, एंड उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकें. So this is in short be fast. Balance, eyes, face, arms, speech, and T is time to act.
एक बार हमने अगर किसी को आइडेंटिफाई किया कि इनको स्ट्रोक आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हॉस्पिटल ले जाना। हॉस्पिटल, ऑल हॉस्पिटल्स may not be ready to treat a stroke patient in all types of modalities. आजकल स्ट्रोक ट्रीटमेंट के बहुत सारे लेटेस्ट ऑप्शंस आ गए हैं जो हर हॉस्पिटल में नहीं रहता है। हर हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं रहता है स्ट्रोक को फास्ट ट्रीट करने के लिए, फास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। इस स्ट्रोक में जितना टाइम लॉस होगा उतना ब्रेन में डैमेज बढ़ता जाएगा। सो द इंटेंशन इज टू टेक द पेशेंट टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल if you know some hospital which is close by, so that best treatment is offered in the shortest amount of time. सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके ताकि ब्रेन का जो ऑनगोइंग डैमेज है वो रोक सके और साथ साथ अदर सपोर्टिव मेजर्स स्टार्ट कर सके। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के कॉमन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? सबसे पहला, एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इक्विप्ड एंड रेडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट जगह है जहां पेशेंट को लेके जाया जाएगा। When the patient comes to the emergency department, the doctors should be ready to take a stroke patient, identify the stroke symptoms, identify the abnormalities जो stroke जैसे हो सकते हैं but stroke नहीं है, so that they differentiate those patients कि ये stroke है या stroke नहीं है। Immediately patients का ट्रायज होना चाहिए ताकि इमीडिएटली पेशेंट्स का नेक्स्ट स्टेप हो सके जो कि इमेजिंग रहता है। सीटी स्कैन या एमआरआई हो सके जिसमें स्ट्रोक का टाइप डिटेक्ट हो सके, स्ट्रोक का डैमेज कितना हुआ है वो डिटेक्ट हो सके। सिमिलरली इमीडिएटली पेशेंट्स के लैब इन्वेस्टिगेशंस जो हम लोग बोलते हैं जाने चाहिए, जो कि अदर स्ट्रोक के जो मिमिक्स रहते हैं उनको हम लोग रूल आउट कर सकें। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज आईसीयू शुड बी अवेलेबल, क्योंकि मोर और लेस स्ट्रोक पेशेंट्स को एटलीस्ट इनिशियल फ्यू डेज में आईसीयू का रिक्वायरमेंट रहेगा, जहां वो क्लोजली मॉनिटर हो सके, क्लोजली मॉनिटरिंग उनके रिस्क फैक्टर्स का हो सके ताकि उसका ऑप्टिमाइजेशन हो सके, और कुछ डिट्यूरेशन हो तो आईसीयू में इमीडिएटली डिटेक्ट हो सके ताकि उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। सो आईसीयू इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट which should be available in a stroke ready hospital. Another important thing that should be available in a stroke ready hospital is a cath lab. cath lab क्या होता है? जहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स करते हैं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है because this is where majority of the strokes which are having large blockages will be treated. So if the cath lab is not there, then these types of patients will not get the treatment. So cath lab is a central component जो stroke hospital में होना चाहिए ताकि acute stroke के patients जिसमें interventional treatment का जरूरत है वो वहाँ पे immediately हो सके। साथ साथ एक और चीज है कि उस हॉस्पिटल में ये एक्सपर्ट्स का टीम रहना चाहिए जो स्ट्रोक के सारे कंपोनेंट्स को स्ट्रोक के सारे कंपोनेंट्स को जो ट्रीट कर सके और उसको मैनेज कर सके। जरूरी नहीं है कि सबका एक सेम टाइम पे जरूरत पड़ेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वन और द अदर स्पेशलिस्ट विल बी नीडेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो जो कोर टीम हम लोग बोलते हैं, अदर देन इमरजेंसी टीम, अदर देन आईसीयू टीम, वो रहता है न्यूरोलॉजी टीम, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं जो कि फिजिशियन रह सकते हैं, जो कि डीएम न्यूरोलॉजिस्ट रह सकते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या तो इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स, क्लॉट रिट्रीवल प्रोसीजर्स, एन्यूरिज्म कॉइलिंग प्रोसीजर्स करते हैं, एंड न्यूरो सर्जन्स रहते हैं जो कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रेन में डिकम्प्रेशन का ज़रूरत है, तो वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ another important component is the expert team of rehabilitation. So फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं जो एक्यूट सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट लेटर इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट so that the patients can return back to as much as functional independence as much as possible. So basically ये एक शॉर्ट में आउटलाइन है जो कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रहना चाहिए, जहाँ की all types of strokes can be treated and taken care of within the hospital.
सो यू शुड बी अवेयर आपके लोकेलिटी में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं विच आर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स, so that if you know some hospital and you identify someone with stroke, you directly take the patients to such hospital, ताकि immediately एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां सारी चीजें हो सकती हैं, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ट्रांसफर का टाइम बचेगा एंड फास्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो स्ट्रोक के बेसिक दो टाइप्स रहते हैं। वन टाइप ऑफ स्ट्रोक इज देयर इन विच द ब्लड that goes to the brain, that blood vessel gets blocked either in the neck like in this case, or some clot goes in and it blocks one of the arteries in the brain like in this case, जैसे कि एक blood vessel block हो गया है blood clot से, तो क्या होगा, ये जिस पार्ट के ब्रेन को सप्लाई करेगा वो पार्ट के ब्रेन में डैमेज होगा एंड वॉट एवर कंट्रोल द पार्ट ऑफ द ब्रेन डज, वो पार्ट में पेशेंट को प्रॉब्लम होगा। द रीजन वाई वी से टाइम इज ब्रेन, जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरी मिनट देर विल बी डेथ ऑफ 2 million brain cells. So the more time we waste, the more brain tissue is getting damaged, and the more is the permanent damage, the more it is difficult to have a good recovery, the more likely the patient will have disability, and the higher will be the chances of the patient having dependency or even a risk of death. So this is one type of stroke जिसको हम लोग ischemic stroke बोलते हैं, जिसमें blood vessel जो है, जो fresh blood brain को लेके जा रहा है, वो block हो जाता है। दूसरे टाइप का stroke रहता है hemorrhagic stroke, in which the blood vessel that is carrying blood to the brain, it ruptures. It can rupture because of multiple causes. One of the most common is उसमें इस तरह से बलून्स हो जाते हैं जिसको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, एंड ये बलून एट टाइम्स रप्चर हो जाते हैं जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। वो ब्लीडिंग होने के कारण क्या होता है, सडनली ब्रेन में ब्लड होने से प्रेशर बढ़ता है, जिस पार्ट में ब्लीडिंग हुआ है उसके कारण पेशेंट्स को सिम्टम्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हेडेक होगा, commonly described as worst headache of the lifetime, suddenly unconscious हो सकते हैं, vomiting हो सकता है, eyes का देखने का प्रॉब्लम हो सकता है, suddenly patients can fall down, and almost 30 to 40% patients will have so much of bleeding कि जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं they may be dead or they may be brain dead. So it is very important to identify what is the type of stroke. सो फर्स्ट स्टेप, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे आपका बेसिक ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाएगा और आपका सबसे पहले एक सीटी स्कैन या एमआरआई टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट यू आर हैविंग। वो स्ट्रोक ब्लड वेसल ब्लॉक होने के कारण है या ब्लड वेसल रप्चर होने के कारण है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग है और एक टाइप का ट्रीटमेंट दूसरे कारण को कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ है एंड इसमें पेशेंट के इतना पार्ट के ब्रेन में ब्लड नहीं आने से ये पार्ट में डैमेज हो गया है, जिसको इस्चेमिक इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आफ्टर गोइंग टू इमरजेंसी विल बी डूइंग सीटी एंड एमआरआई। इसीलिए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में सीटी एमआरआई होना इतना जरूरी है। इवन इफ अगर एमआरआई नहीं है, अच्छा सीटी स्कैन है जिसमें सीटी एंजियोग्राफी हो सकता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वहां पे इमेजिंग आइडेंटिफिकेशन हो सकता है टाइप ऑफ स्ट्रोक का। सो कमिंग टू इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हमको क्या ऑप्शंस लगते हैं, डिसीजन मेक करने में क्या हमारे इमेजिंग आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो पेशेंट को जब ब्लड फ्लो कम जाता है तो ब्रेन में दो तरह का डैमेज होता है, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल डैमेज होने से एक पार्ट के ब्रेन को कंप्लीट डेथ हो जाएगा, जो कि रिवाइव नहीं होगा इवन ब्लड फ्लो अगर बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इस्चेमिक कोर। इसके अराउंड का ब्रेन टिश्यू रहता है जो कि इरिवर्सिबली डैमेज, जो कि रिवर्सिबली डैमेज, दिस कोर इज रिवर्सिबल, दिस कोर कैन नॉट बी रिवर्स्ड
दिस इज परमानेंटली डैमेज्ड। इसके पार्ट का जो ब्रेन है, इसका डैमेज अभी परमानेंट नहीं हुआ है, इसको अभी रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि इसको आसपास से थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो दिस टिश्यू इज एट रिस्क। स्ट्रोक ट्रीटमेंट का पूरा इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो एट रिस्क वाला ब्रेन है, इसको बचाया जा सके, इसका जो डैमेज है इसको रिवर्स किया जा सके। एक बार वो डैमेज इरिवर्सिबल अगर हो जाता है तो वो टिश्यू को बचा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें डैमेज एक लिमिट के आगे वापस ब्लड फ्लो जाने के बाद भी उसका फंक्शन वापस नहीं आएगा, वो टिश्यू परमानेंट डेथ हो चुका है। तो सीटी एमआरआई हमको हेल्प करता है ये भी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पार्ट का टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो चुका है, कौन सा पार्ट का टिश्यू अभी परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ है, which we can still save and revive. If we have a lot of tissue which is permanently damaged, then whatever treatment we do to improve the blood flow, उसमें बहुत ज़्यादा benefit patient को नहीं होगा क्योंकि almost all tissue is dead. So there is no much benefit doing that treatment. अगर पेशेंट का बहुत सारा टिश्यू एट रिस्क है जो कि सेव कर सकते हैं, then these are the patients who are ideal patients who should undergo treatment options that we will discuss later on, that will help to improve the blood flow to this tissue and prevent them from getting permanently damaged and improve their functional status. So treatment options इसमें क्या रहते हैं, एक बार हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक है, उनका सीटी एंजियोग्राफी किया जिसमें ब्लॉकेज दिख रहा है जो कि बड़ी वेसल का ब्लॉकेज अगर है, तो ट्रीटमेंट के इसमें 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग क्लॉट बस्टिंग ड्रग देते हैं जिसको थ्रोम्बोलिटिक ड्रग बोलते हैं, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस। सो इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप इज, अगर पेशेंट 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आया है स्ट्रोक शुरू होने के, अगर बहुत सारा ब्रेन का टिश्यू अभी डैमेज नहीं हुआ है, तो उन पेशेंट्स को आईवी थ्रोम्बोलाइसिस ड्रग दे सकते हैं जो कि हम लोग अल्टीप्लेस या टेनेक्टेप्लेस ड्रग्स बोलते हैं। ये ड्रग्स का फायदा क्या है कि जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, ये उस क्लॉट को बर्स्ट करने में हेल्प करता है। तो वो ड्रग से अगर पेशेंट को इमीडिएटली जल्दी से जल्दी मिले तो चांसेस हैं कि वो क्लॉट बर्स्ट होके वो ब्लड वेसल ओपन हो जाए और ब्लड फ्लो वहां से शुरू हो जाए। सो जो डैमेज वाला पार्ट है उसके अलावा जो रिस्क वाला पार्ट है दैट कैन बी सेव्ड जिसको हम लोग जिसको हम लोग आईवी थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट बोलते हैं। बट इसके साथ साथ जो आज की डेट में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच इज इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसको हम लोग एंडोवैस्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। यूजुअली अगर पेशेंट को बड़े वेसल में ब्लॉकेज है जैसे कि गले की नस में या ब्रेन की मेन बड़ी नस में, तो पेशेंट्स को विद इन 4.5 आवर्स थ्रोम्बोलिसिस तो देना रहता है, लेकिन उसके इफेक्ट के लिए वेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 30% पेशेंट्स में ही चांसेस है कि वो मेडिसिन बेनिफिट करेगी। अगर बहुत बड़ा क्लॉट है, बहुत लॉन्ग क्लॉट है, तो मे बी वो मेडिसिन का इफेक्ट आने का चांसेस कम है। इसीलिए तुरंत पेशेंट्स को थ्रोम्बेक्टोमी ट्रीटमेंट भी ऑफर करना जरूरी है, तुरंत कैथ लैब को एक्टिवेट करना जरूरी है एंड साथ साथ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट ऑफर करना जरूरी है। इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, एंजियोग्राफी करेंगे पेशेंट का। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से थ्रोम्बोलिसिस से वो आर्टरी ऑलरेडी ओपन हो गया है, then it is very good, we don't need to do anything. But if the artery is still closed, then we need to go and remove that clot so that blood flow can be again restored. So that is why we don't wait. Otherwise 1 घंटा मेडिसिन का एक्ट करने के लिए वेट करेंगे, we will lose that 1 hour and brain damage will increase. Give the drug, shift the patient to cath lab, do angiography. If the artery is open, stop. If the artery is still blocked, do interventional treatment to open up that artery so that कम से कम टाइम में all options are given to open up that artery to minimize the damage. दूसरा एक ऑप्शन रहता है सर्जिकल ऑप्शन, जो कि यूजुअली एक्यूट स्टेज में जरूरत नहीं पड़ता है, बट अगर पेशेंट्स को बड़े स्ट्रोक्स है
तो वो स्ट्रोक में ब्लीड होने का रिस्क रहता है, वो स्ट्रोक में नेक्स्ट 2-3 डेज में स्वेलिंग होने का रिस्क रहता है ब्रेन में, जिसके कारण ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा, तो पेशेंट्स को डीकम्प्रेशन सर्जरी का जरूरत पड़ता है, जिसमें ब्रेन का जो स्कल कैप रहता है वो निकाल देते हैं प्रेशर कम करने के लिए, ताकि पेशेंट्स को उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फीमोरल आर्टरी जो कि ग्रोइन का एक आर्टरी रहता है, या तो रेडियल आर्टरी जो कि रिस्ट का एक आर्टरी रहता है, उसमें हम लोग एक स्मॉल इंजेक्शन के थ्रू अंदर ही अंदर से कैथेटर और वायर्स के थ्रू ब्रेन में जो वेसल में ब्लॉकेज है उसमें जाके वो क्लॉट को वी ट्राई टू रिमूव दैट क्लॉट। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन एंजाइना पेशेंट्स इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट अटैक में जो करते हैं, सिमिलरली स्ट्रोक इज लाइक अ ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक में हम लोग एंजियोग्राफी करके वो आर्टरी को ओपन करते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये है, ये मिनिमली इन्वेजिव है। Just take small injection के through everything is done from the inside. We don't need open surgical procedures for this. So basically ये एक आर्टरी है जो ब्रेन में जा रहा है और इसमें यहाँ क्लॉट आके बैठा है। हम लोग एक स्मॉल इंजेक्शन के थ्रू इस तरह से कैथेटर्स और वायर्स पास करते हैं। यहाँ पे एक डिवाइस जिसको स्टेंट जैसा डिवाइस रहता है, स्टेंट रिट्रीवर बोलते हैं, वो जाके ये क्लॉट को पकड़ के क्लॉट को पुल आउट कर लेता है एंड आर्टरी वापस से ओपन हो जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में पेशेंट के एमआरआई में काफी स्ट्रोक के चेंजेस आ चुके हैं। हमने एंजियोग्राफी किया तो यहाँ से आगे जाके आर्टरी में ब्लॉकेज है, कोई फ्लो नहीं है। तो जैसा कि इसमें हमने कैथेटर और स्टेंट पास किया, उसी तरह से एक्सरे में यहाँ देख सकते हैं कि स्टेंट हमने पास किया है जो कि क्लॉट को पकड़ लिया है, और उसको निकालने के बाद ये आर्टरी में वापस से फ्लो स्टार्ट हो गया। तो दिस इज द आर्टरी विच वाज नॉट शोइंग एनी फ्लो, यहाँ से इट वाज ब्लॉक, दिस हैज अगेन स्टार्टेड फ्लो एंड इट इज शोइंग गुड फ्लो आफ्टर रिमूवल ऑफ द क्लॉट। So this is one of the techniques in which we use stent retrievers to remove the clots. दूसरा टेक्निक रहता है जिसमें कि हम लोग वैक्यूम पंप्स यूज करते हैं। वैक्यूम पंप से क्या होता है, वो क्लॉट को सक कर लेता है। जैसे कि ये क्लॉट है, हमने यहाँ पे एक अपना कैथेटर डाला और वैक्यूम पंप ऑन किया, जो कि एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूम पंप है जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेशर दिया जाता है सो दैट वी रिमूव द क्लॉट विदाउट डूइंग हार्म टू नॉर्मल आर्टरी। सो ये वैक्यूम से क्लॉट गेट्स स्टक इन द आर्टरी और इट गेट्स सक्ड इनटू द कैथेटर, and when we remove this catheter the clot also gets removed like this. So ये clot एक बार निकल जाता है तो वो आर्टरी ओपन हो जाता है। जैसे कि एक ये पेशेंट में एमआरआई में काफी डैमेज हो चुका है, बट इतना नहीं कि पेशेंट को बेनिफिट ऑफर ना कर सके, क्योंकि काफी सारा ब्रेन अभी भी डैमेज नहीं हुआ है। सो इस पेशेंट में यहाँ के आगे पूरा ब्लॉक है, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। हमने हमारे कैथेटर्स एंड वायर्स लेके गए ये ब्लॉक के लेवल पे एंड पंप से ये क्लॉट को रिमूव किया। ये क्लॉट है जो हमने एस्पिरेशन करके निकाला है। सो दिस वाज व्हाट वी हैड टू बिगिन विद, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस क्लॉट वी कैन सी ये पूरा ब्रेन को ब्लड फ्लो वापस स्टार्ट हो चुका है। वंस दिस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन स्टार्ट्स, द पार्ट दैट इज नॉट येट डैमेज्ड, दैट इज नॉट येट परमानेंटली डैमेज्ड, that can start to recover। and उसके कारण बहुत बार ऑन टेबल ही हम देखते हैं पेशेंट को जो हाथ का वीकनेस हुआ था, जो बात करने में लड़खड़ाहट हुई थी, ऑन टेबल ही पेशेंट्स नॉर्मल पावर में आ जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक इशू होता है, कई बार पेशेंट्स को नेक में ही ब्लॉकेज है, नेक में ही जो आर्टरी ब्रेन को जाती है वहां पे ब्लॉकेज रहता है। ये ब्लॉकेज इतना टाइट रहता है कि पेशेंट को वार्निंग स्ट्रोक्स जैसे होते हैं, जिसको हम लोग TIAs बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए वीकनेस होगा, फिर रिकवर हो जाएगा, which will be less than 24 hours. It lasts for few seconds, few minutes or few hours and recovers on itself. So कुछ पेशेंट्स को ये बार बार माइनर स्ट्रोक्स होते रहते हैं। ये पेशेंट्स का भी इट इज इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएट इन डिटेल कि इनके जो ब्रेन को जो ब्लड वेसल
हार्ट से निकल के ब्रेन को जा रहा है, एनीवेयर अगर उसमें ब्लॉकेज है, these patients will be at high risk of future stroke also. So like in this patient we can see ब्रेन को जो नस जाती है गले में, उसमें बहुत टाइट ब्लॉकेज है, ऑलमोस्ट 90% 95% ब्लॉकेज है। इसके कारण ब्रेन में भी ब्लड फ्लो काफी स्लो हो गया। तो व्हाट वी डू इन दिस इज वी डू अ स्टेंटिंग प्रोसीजर इन विच हम लोग ये आर्टरी को स्टेंट कर देते हैं। स्टेंट करने से क्या होता है, एक वो प्लाक ओपन अप हो जाता है एंड इट गेट्स सिक्योर्ड, ब्लड फ्लो भी ब्रेन को बढ़ जाता है एंड फ्यूचर में स्ट्रोक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। सो वी कैन सी आफ्टर स्टेंटिंग दिस हैज ओपनड अप सो नाइसली। पहले ये ऐसा था, अभी काफी इंप्रूवमेंट आ गया है विद नो सिग्निफिकेंट रेसिडुअल स्टेनोसिस एंड ब्रेन को ब्लड फ्लो भी काफी इंप्रूव हो गया है। अगर स्टेंटिंग नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन रहता है ओपन सर्जरी करके भी ये प्लाक को निकाला जा सकता है, जिसको एंडाट्रेक्टोमी प्रोसीजर बोलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स इन बोथ द सिचुएशंस। कुछ पेशेंट्स को फॉर सम रीजन सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बहुत हाई रिस्क होते हैं, या तो ये आर्टरी बहुत हाई रहता है, या तो पेशेंट्स का रिस्क बहुत हाई रहता है। तो इन दोज पेशेंट्स आल्सो वी कैन डू स्टेंटिंग प्रोसीजर्स वेरी सेफली। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रोक जो रहता है जिसमें ब्लीडिंग होता है रप्चर होने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये ट्रीटमेंट टोटली अलग है, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें ब्लॉकेज होता था, हम लोग आर्टरी खोलने का प्रोसीजर कर रहे हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े। इसमें आर्टरी रप्चर हो गया है, उसमें हम लोग जो वीक पॉइंट है उसको हम लोग क्लोज करना चाहते हैं सो दैट कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने का रिस्क कम हो जाए। तो इसमें भी ट्रीटमेंट के दो तरीके रहते हैं। एक, या तो हम लोग ओपन सर्जरी करें जिसमें क्रेनियोटॉमी करके डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन इट इज ओपन स्कल करके उसको क्लिप किया जाए, या तो सिमिलरली जैसा हमने एंजियोग्राफी किया था थ्रू इंजेक्शन गोइंग थ्रू फीमोरल और रेडियल आर्टरी, उसको इंटरवेंशनल तरीके से ट्रीट किया जाए। सो ये एक तरीका है जिसमें हम लोग ओपन सर्जरी में करते हैं। ये एन्यूरिज्म है, इसको जाके क्लिप कर देते हैं so that इसके अंदर blood flow gets reduced. Once the blood flow is reduced, it closes off and वहां से दोबारा ब्लीडिंग होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा तरीका जो इंटरवेंशनल तरीका होता है, हम लोग अंदर ही अंदर से जाके वायर और कैथेटर लेके, इसमें स्प्रिंग जैसे कॉइल्स रहते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के रहते हैं, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन, प्लैटिनम कॉइल्स रहते हैं, जो हम लोग इसमें डालते हैं एंड इससे यहाँ पे क्लॉट बन के ये क्लोज डाउन हो जाता है। जैसे वायर लेके कॉइल्स डाल के इसको क्लोज डाउन कर देते हैं एंड ये फ्लो इसमें बंद हो जाता है, ये सिक्योर हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है, इसमें ओपन सर्जरी का जरूरत नहीं है, रिकवरी कंपेरेटिवली फास्टर है एंड ओपन जो स्कल करना पड़ता है वो इसमें नहीं करना पड़ता है। इसमें भी अलग अलग तरीके रहते हैं। कई बार कॉइल्स वहां पे बहुत वाइड होने के कारण कॉइल्स आर नॉट एबल टू स्टे, उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार बलून या स्टेंट डालते हैं सो दैट कॉइल्स आर विद इन द एन्यूरिज्म एंड दे डोंट कम इनटू द मेन आर्टरी। सिमिलरली आजकल बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं इसको ट्रीट करने के। एक तरह का स्टेंट होता है, फ्लो डाइवर्टर स्टेंट बोलते हैं, जो कि हम लोग इसमें डाल सकते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को रीडायरेक्ट करता है ताकि फ्लो एन्यूरिज्म में ना जाए एंड एक ही डायरेक्शन में जाए, लैमिनर फ्लो अलोंग द नॉर्मल पाथ हो। तो धीरे धीरे ये एन्यूरिज्म्स अपने आप क्लोज डाउन हो जाते हैं क्लॉट बन के। इसी तरह से अंदर से हम लोग इसमें ये अम्ब्रेला तरह का डिवाइस डाल देते हैं ताकि फ्लो यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, बट एन्यूरिज्म में फ्लो बंद हो जाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एन्यूरिज्म्स वी कैन डू दिस ट्रीटमेंट्स। जैसे कि ये एक केस है, ये पेशेंट में एक एन्यूरिज्म था जो कि ब्लीड हुआ था। इसमें हमने एंजियोग्राफी किया, जस्ट एक स्मॉल इंजेक्शन देके एंड इसको कॉइल किया। ट्रीट करने के बाद वी कैन सी दैट देयर इज नो फीलिंग ऑफ द एन्यूरिज्म, नॉर्मल ब्लड फ्लो एज इट इज चालू। So in short, we have discussed what are the types of stroke. It all begins with the first step, which is to identify the stroke. जैसा कि हमने डिस्कस किया, बी फास्ट, बैलेंस, आईज, फेस, आर्म्स, स्पीच, एंड टी इज टाइम टू एक्ट।
we should act very fast, because the more we delay, the more blood is not going to the brain, and the more more and more brain tissue is getting damaged. The late the treatment, the less is the chance that patient will get back to normal life, the less is the chance that patient will get back to normal functional status. डिसेबिलिटी ज्यादा होगा, डेथ का रिस्क ज्यादा रहेगा. तो जितना फास्ट हो सके उतना जरूरी है, ताकि पेशेंट को ट्रीटमेंट का बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट मिल सके. दूसरा एडवांटेज कैसा है कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाना अगर पॉसिबल है, क्लोजेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल आपको मालूम है तो ले जाएं, सो दैट ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में डिले ना हो. ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द पेशेंट. CT and MRI will be obviously done to identify the type of stroke and accordingly decide the type of treatment, whether thrombolysis, thrombectomy, or if it is an aneurysm which has ruptured, coiling, or some other surgical option is needed. And most important step after all this, in the long term, we have to see the more tissue we are able to save, the faster is going to be the recovery. And whatever damage the patient has developed, the patient will need a regular follow-up with physiotherapist, occupational therapists, speech therapists, depending on क्या disability patient को है, which needs to be done regularly, which forms a very important part for rehabilitation of the patient. So in brief, I have tried to summarize what all things medical point of view may be needed for managing stroke, what are the treatment options. आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो what are the things that you may be told, आपको ये ब्लड टेस्ट लगेंगे, आपको ये CT MRI लगेगा, आपको थ्रोम्बोलिसिस का जरूरत पड़ सकता है, यू मे रिक्वायर थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर, एन्यूरिज्म है तो कॉइलिंग या क्लिपिंग का प्रोसीजर्स. ये सब चीजें हैं जो आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया है मैंने, what options you may be told, so that you are just aware of basic outline of these treatment options. Thank you so much. For more details, मैंने वेबसाइट में भी ये चीजें डाली हैं simplified form में, just to create an awareness. If you want, you can visit the website. Thank you so much. Much, Dr. Saab, indeed, आपने काफी simplified form में मेरे ख्याल में for the lay people like us explain करने की कोशिश करी है. जैसे पूर्णिमा जी भी कह रही हैं chat में, indeed it's a very complex issue. I can imagine जो operations आप clipping वगैरह कह रहे हैं, although they look relatively easy when you see them on the slide, but I'm sure at your end काफी उसके अंदर रहते होंगे complications और skills वगैरह उसके अंदर रहते होंगे, and must be very, very delicate operations. See, I had just 2-3 queries. Of course, others will also come in, but just one thing which comes to my mind first off. कहीं पर क्या ये, जैसे आपने स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स की जिक्र किया, तो क्या कहीं पर कोई लिस्ट है या is it in public domain somewhere कि भाई यहाँ पर that there's a list of stroke ready hospitals in this city? How does one, कहाँ से पता चलेगा वो? Right. So ये एक इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी अभी ले रही है जो कि इंटरवेंशनल सोसाइटी है. वी आर in the process of formulating list of all the stroke ready hospitals in India, so that it can be released in the public domain. It is available to everyone, so that किसी को भी आजकल तो online, everyone is online. Patient दिखा stroke ready hospital near me, if they search, they will get a list. So that is easily available. But still, most of the hospitals, if they are stroke ready, they will also keep themselves updated and put it online on their websites. Yes, that we are stroke ready. So even today you can try out आपके घर में बैठे बैठे कि stroke ready hospitals near me. So even जहाँ पे cardiac myocardial infarction वगैरह MI के cardiologist के patients जाते हैं, वहाँ भी because cardiologist and हम लोग same cath lab use कर रहे हैं. So if they are treating cardiology cases, more or less those hospitals are stroke ready. Otherwise,
डोंट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। नियरेस्ट आपको जो भी हॉस्पिटल मालूम है जहां आईसीयू है, इमरजेंसी है, टेक द पेशेंट देयर, सो दैट एटलीस्ट एक जो मॉडल रहता है जिसमें हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट ब्लड क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स तो स्टार्ट कर सके। वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड एंड देन मे बी शिफ्ट द पेशेंट, अगर थोड़ा दूर है या लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट क्लॉट बस्टिंग ड्रग कैन बी स्टार्टेड एंड देन next step can be searched for, so whatever benefit that drug gives, that gives. So for clot, as you said, जो clot busting drug के लिए we have to first of all identify कि किस तरीके की stroke है, ischemic है कि hemorrhagic है, for which at least essential होना चाहिए कम से कम CT scan वहाँ, कम से कम CT तो होना ही चाहिए, कम से कम CT scan हो, and then they will be able to take a call कि ये ischemic है कि hemorrhagic है. right. Hemorrhagic अगर stroke है डॉक्टर साहब, just as a matter of curiosity and for others, मान लीजिए hemorrhagic है, उसकी भी है कि उसका सिर्फ फिर सर्जिकल ऑप्शन रह जाता है? नहीं, उसमें भी इंटरवेंशन होता है। हेमोरेजिक के भी बहुत टाइप्स रहते हैं। एन्यूरिज्म मैंने एक चीज बोली जो कि कॉमन होता है, दूसरा एवीएम रहता है, कई बार वीनस स्ट्रोक्स रहते हैं जो ब्लीड होते हैं। तो बेसिकली किस टाइप का हेमोरेजिक स्ट्रोक है, कुछ मेडिकली ट्रीट होते हैं, कुछ इंटरवेंशन से होते हैं, कुछ सर्जिकली होते हैं। एन्यूरिज्म्स जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स, उसमें क्लिपिंग भी होता है जो कि ओपन सर्जरी से होता है, कॉइलिंग भी होता है जो कि इंटरवेंशन से होता है। इंटरवेंशन नाउडेज बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ है लास्ट 10 years में, lot of aneurysms are now possible to treat with intervention with good long term results. तो सेफ्टी काफी बढ़ जाता है इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स करने का, ये एडवांटेज है, पेशेंट का रिकवरी फास्टर हो जाता है। See, just as a layman again, intervention and surgery में क्या फर्क है? इंटरवेंशन जैसा हम एंजियोग्राफी, जैसे आपको कार्डियक में स्टेंटिंग मालूम है और बाईपास मालूम है, ओके, तो कार्डियक स्टेंटिंग अंदर ही अंदर से एंजियोग्राफी के थ्रू होता है, वैसे ही ब्रेन एन्यूरिज्म या स्ट्रोक का इंटरवेंशन है जो हम लोग एंजियोग्राफी के थ्रू अंदर ही अंदर से करते हैं। इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी, एंडोवास्कुलर सर्जरी, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बट बेसिक है जो कि एंजियोग्राफी टेक्निक से अंदर ही अंदर से किया जा रहा है। जहां ओपन सर्जरी से किया जा रहा है, जैसे कट करके मैंने फोटो डाला था, क्रेनियोटॉमी करके कट करके करना पड़ रहा है, वो सर्जरी हो गया ओपन सर्जरी। तो एक मिनिमली इन्वेजिव है और एक ओपन सर्जिकल है। And these are different skill sets. Like these are different skill sets. Radiologist, you will be doing, for example, the angioplasty or stenting, etc. Right. When the opening of skull is required, that will be probably neurosurgeon. Neurosurgeon. Okay. Okay. Yes, because that is something we also sometimes. So, अगर stroke ready hospital की हम बात करें, तो normally उसके पास that hospital should have an access to both an interventional radiologist as well as a neurosurgeon, because you don't know. Right. पड़ सकती है. Mostly अर्ली पार्ट में इंटरवेंशन का जरूरत फर्स्ट पड़ता है अगर इस्चेमिक स्ट्रोक बोल रहे हैं, क्योंकि क्लॉट रिमूव करने वाला प्रोसीजर ओपन सर्जरी से नहीं होता है, वो या तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग से होगा या तो फिर इंटरवेंशन से होगा। ओपन सर्जरी का रोल तब आएगा जब स्ट्रोक के कारण ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रहा है, एट दैट पॉइंट डिकम्प्रेशन करना है, मोस्टली विद इन फ्यू डेज ऑफ स्ट्रोक, तब जरूरत पड़ता है। तो यूजुअली वी कीप अ टीम सो दैट एवरीवन इज अवेयर। ऐसा नहीं कि जब पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हुए तब न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व, सो दे आर आल्सो इन अ फिक्स कि क्या हुआ था क्या नहीं होता। इफ दे आर सीइंग द पेशेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, दे आल्सो नो कि प्रोग्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो रिलेटिव्स भी अकॉर्डिंगली काउंसिल्ड रहते हैं, सो दे आर आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। And as you said, cath lab होनी जरूरी है। cath lab इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट बिना cath lab के पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या, I was reading somewhere, उसमें कुछ फ्लोरोस्कोपी, some there are video through which all these procedures are done. Right. So it is basically जैसे मैंने images दिखाए मेरे एंजियोग्राफी के जिसमें क्लॉट्स रिमूव किया, तो everything we see on X-ray it is a live X-ray.
एक्सरे में क्या है, Okay. आप एक जस्ट पिक्चर लेके छोड़ देते हैं. इट इज लाइव एक्सरे. वी कैन सी आवर कैथेटर्स एंड वायर्स गोइंग. वी डू रिपीटेड शूट्स टू चेक किस लेवल पे क्लॉट है. क्लॉट निकालने के बाद फ्लो कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है, नहीं हुआ है, और कुछ करने का जरूरत है. सो एवरीथिंग इज अंडर विजन. Hmm. So this is like a image intensifier which gives us that fluoroscopic image. Hmm. Now, in a scenario like Punima ji कह रहे हैं, many times, of course, India में होता ही होगा, patients do not have access to any hospital. Rural area है, what does one do in that situation? So worst come worst कुछ भी available नहीं है. एटलीस्ट एक सीटी तो जरूरी ही है ये डिसाइड करने के लिए कि स्ट्रोक किस टाइप का है, Hmm. इस्चेमिक है कि हेमोरेजिक है. क्योंकि Hmm. जैसे एंजाइना में बोलते हैं हार्ट में पेन हुआ इकोस्प्रिन दे दो, वहां सिर्फ एक ही कारण रहता है जो कि इस्चेमिक रहता है, जो कि Okay. इकोस्प्रिन को रिस्पॉन्ड करेगा. अगर ब्रेन में ब्लीड हुआ है और आपने इकोस्प्रिन दिया तो वो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा, विच इज वो हार्ट वाला रूल ब्रेन में अप्लाई नहीं कर सकते. Hmm. तो Hmm. सीटी इज अ मस्ट बिफोर गिविंग इकोस्प्रिन so that we have ruled out a bleed and confirmed a ischemic stroke, then given an ecosprin or maybe clot busting drug जो कि thrombolytic बोलते हैं. So don't give At, ecosprin unless you have ruled out a bleed. at, at this stage in India, are most of, let's say, जो बंदे जो CT scanning करते हैं at the operator level, let's say, are they to some extent trained कि भाई ये brain bleed दिख रहा है और ये ischemic दिख रहा है? Yes, yes, yes. It is a very common problem. So 80% of the strokes ischemic ही रहते हैं. Hardly 20-30% रहेंगे जो कि bleed के कारण रहते हैं. So कोई भी सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिन के डेली बहुत सारे स्ट्रोक्स देखते हैं. सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट टेस्ट है जो कि सीटी ब्रेन बोलते हैं. एंड स्ट्रोक इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंडिकेशंस सीटी जिसके लिए किया जाता है. सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट इज वेरी लेस लाइकली दैट एनीवन विल मिस इट. कई बार बहुत अर्ली स्ट्रोक्स में सीटी स्कैन नॉर्मल रहता है. 20 to 30 टाइम्स सीटी नॉर्मल निकलेगा इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रोक बीइंग देयर, बिकॉज बहुत अर्ली चेंजेस सीटी में नहीं दिखते. नहीं आएंगे. एट दैट टाइम एमआरआई इज वेरी सेंसिटिव इफ इट इज अवेलेबल. या तो वी हैव टू गो बाय क्लिनिकल सिचुएशन दैट वी हैव रूल्ड आउट द ब्लीड, पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स है, देन वी गिव द ड्रग्स. And Dr. Saab, just coming back to stroke ready hospitals, जी. generally, what is your assessment? How many of these, roughly percentage wise, would be, let's say, government hospitals, and how many of them would be private hospitals? सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम क्या रहता है? मैन पावर का फर्स्ट. दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज देयर, बट वेदर इट इज फ्री, वेदर दोस प्रोसेसेस आर स्ट्रीमलाइंड, वेदर दैट कोऑर्डिनेशन इज देयर, वो चीज का प्रॉब्लम आता है. मतलब मेरा ट्रेनिंग पूरा केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे से हुआ है. वहां भी सारी चीजें हैं, अवेलेबल है, वहां भी सारी चीजें हम लोग करते हैं. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर वॉल्यूम्स ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो, a lot of times there may be delay. Suppose I am in a case elsewhere, मेरे को कॉल भी आया तो unless I finish the case I will not be able to attend unless I have a junior who is free who can go or see. Usually it is a team which is available, but at times patients के लिए कई बार बेड अवेलेबल नहीं है आईसीयू में, कई बार कैथ लैब बिजी नहीं है इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए क्योंकि ऑलरेडी कोई केस चालू है. तो इट इज logistical problem. Facilities are available, just that it may not be streamlined, or logistically it may not be possible कि we keep a bed vacant. Government में we cannot keep a bed vacant कि stroke patient आएगा तो उसके लिए रखा है. आज की तारीख में जो patient है उसको जरूरत है, we have to allot that. तो वो logistical issues रहते हैं. Otherwise, facilities in most of the hospitals, in secondary, tertiary, at least tertiary care government hospitals में वो सारी facilities आजकल more or less available रहती हैं. So in total, how many, let's say, coming back, how many stroke ready hospitals in India would be there?
And roughly how many, let's say, would be government hospitals in your rough opinion, assessment? Difficult to say, but as per MCI guidelines, now CT MRI अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करना है रेडियोलॉजी में, CT MRI is a must, cath lab is a must. So ये सारी चीजें जहाँ जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है वहाँ ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. एंड अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो कार्डियक सेंटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम विल हैव दिस फैसिलिटीज, और they will have a tie up with a close CT MRI center close by है जहाँ तुरंत के तुरंत हो सके. तो वो प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड अगर हैं तो टाइम कम से कम लग के it can be coordinated. There is a question in chat, then I will come to Wilson ji, who raised his hands, but let's say Yetunde's question first. She's saying that can surgical interventions be applied to an ischemic stroke of 3-5 years? 3-5 साल हो गए हैं. Are there any surgical intervention at this stage which will be useful in your opinion, Doctor? Usually it is not very helpful because the whatever damage is there that has already been done. The only thing that we can do is we can look for any underlying stenosis. जैसे मैंने बोला neck में carotid stenosis है, vertebral stenosis है. अगर वो recurrent transient attacks कर रहा है या minor strokes अभी भी कर रहा है within last 6-7 months, then we can consider treating those. We can rule out other causes of stroke, जैसे हार्ट का रिदम का प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ क्लॉट्स हैं जो स्ट्रोक करने का रिस्क है. We can correct those. Otherwise 3 to 5 years के स्ट्रोक में सर्जिकल इंटरवेंशन का सच कोई ज्यादा रोल नहीं गया, ज्यादा रोल नहीं. Wilson ji, if you can unmute yourself, you had a question. Maybe you can unmute and speak up. Yes, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Sir, as you have explained right now, you're from Bombay. You are associated with KEM Hospital, and my question is that, sir, in Bombay, if we are going to say how many or what are the hospitals which are stroke ready, and what are the basic things which are required for a hospital to be said as a stroke ready hospital? Okay, Wilson ji, you joined a little bit late. Yeah, right. Sorry, sir. We did discuss, the basic parameters, and they are in the slide, which we can come later. But what I understand, and I will, in short, just repeat, कि कम से कम the basic minimum is कि वहाँ CT होना चाहिए. Okay. एक चीज ये है, and of course, Amit sir, please come in, whenever I'm missing something. CT होना चाहिए, cath lab होना चाहिए, और team of neuro specialists, इसमें कि interventional radiologist and a neurosurgeon are the most important aspects. I think that encapsulates Amit sir, or is there anything that I... Yeah, so KEM में मेरा training था, but now I am not at KEM. I have left KEM now. But stroke ready hospital में basically emergency department तो हर hospital में रहता ही है. उसके अलावा ICU facility रहनी चाहिए ताकि stroke patient का care हो सके during and after intervention. CT MRI रहना चाहिए, एटलीस्ट CT रहना चाहिए जिसमें CT एंजियोग्राफी भी हो सके, कैथ लैब रहना चाहिए, एंड टीम ऑफ डॉक्टर्स विच आर एक्टिवली ट्रीटिंग स्ट्रोक, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट या तो फिजिशियंस, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, एंड कैथ लैब जहाँ पे इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स हम लोग कर सके. Sir, my other question, since I understood about the requirements, they are quite this thing. Any hospital should have a CT or MRI. But in Bombay, what are the major hospitals basically who are having all such type of facilities? Because right now I realize that when I received a stroke or when I got a stroke, I was admitted in a hospital where there was no CT scan. I was sent to some another institute to do my CT or MRI basically. So in Bombay, how many or what are the major hospitals which are stroke ready hospitals, sir? Okay, so ये आप एडमिट हुए थे बॉम्बे में हुए थे, कहाँ हुए थे?
Yes, sir. I was in South Bombay. I was at Darvi Hospital next to. That means I did not had any time to go to Bhatia Hospital. I am staying in between Bhatia Hospital and Darvi Hospital. So I immediately I came to know, as I vomited. I came to know that it is something very serious, and I rushed immediately to the hospital along with my family members. So the next hospital for me was Darvi Hospital, where there is no facility of MRI or any other. Of course, ICU is there, but MRI is not there. Okay, so basically CT scan भी है तो sufficient है in almost 80-90% of the situations, and Bombay में, at least Bombay में almost every area will have an hospital which is stroke ready. जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैं उस एरिया में बॉम्बे सेंट्रल में वोखाट हॉस्पिटल है, वहां पे भी वी डू प्रोसीजर्स. वहां पे बीएमसी का भी हॉस्पिटल है जो कि नायर हॉस्पिटल है, वहां पे भी फैसिलिटीज हैं. एंड अदर देन दैट वहां तो बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जसलोक है, ब्रिच Yes, कैंडी yes. है, सब जगह पे स्ट्रोक रेडी Yes, फैसिलिटीज but हैं. yeah, I mean, I myself know most of the hospitals, but I think so that the condition was something like that. I was getting a blurry vision and difficulty in walking also. So the next, within 5 minutes, I could reach there was the Darvi Hospital. If राइट. no, so I surrender myself to the doctors over there at Darvi Hospital, and I was treated. Where I came to know later that after joining this group, that Stroke Ready Hospital and what is stroke and all, something like that, that the hospital did not had a basic facility of CT scan or MRI as well. So of course, Jaslok is nearby. The Bhatia is the nearest to me, near वहां भी है. to this Darvi Hospital. तो बेसिकली देखिए अभी कैसा है कि द पर्सन हु इज टेकिंग यू टू द हॉस्पिटल, Yeah. ही शुड बी अवेयर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है. इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सो दैट दिस Right. मैसेज गोज टू द पब्लिक. अभी आप Right, किसी को right. बोलेंगे मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, वो आपको सही हॉस्पिटल लेके जाएगा. Right, right, right. लेकिन लेकिन किसी को आप पेशेंट को बोलेंगे समझ मेरे में को ही नहीं आ रहा ब्रेन है. अटैक हो रहा है, उसको नहीं मालूम होगा कि किस हॉस्पिटल में Yes. ब्रेन अटैक ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाई Right, वी right. वांट टू रेज अवेयरनेस कि ब्रेन अटैक इज ट्रीटेबल, ब्रेन अटैक शुड बी टेकन सीरियसली. हार्ट अटैक में काफी पेशेंट्स को पेन होता है, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई. ब्रेन अटैक में बहुत कम पेशेंट्स को पेन होगा. पेन इज इजीली परसीव्ड. थोड़ा बहुत वीकनेस होता है, लोग छोड़ देते हैं, रात को सो जाते हैं, शायद आज ज्यादा काम कर Right. लिया, सुबह उठते हैं तो पूरा स्ट्रोक हो गया रहता है. So that is why Oh. we need to raise that awareness कि stroke should not be taken lightly. इसके warning signs should not be taken lightly. Stroke ready hospital क्या होता है, वो एक awareness रहना चाहिए, not only to the non-medical faculty, even medical faculty at times may not be aware कि intervention के क्या क्या options है. क्योंकि ये जो सारा हमने discuss किया, thrombectomy, interventional procedures, ये last 5 to 6 years में ही these treatments have established themselves as the first line of treatment, gold standard of treatment. उससे पहले ये सब under trial थे. Last Okay. 5-6 years में ही ये treatments mainstream available हुए हैं, establish हुआ है role कि हाँ ये treatments should be offered to patients who are eligible for these treatments. That is why ये concept आया है stroke ready hospital का, where the best possible treatment is also available to the patient who needs that. So Okay, इसलिए thank every you, sir. hospital is now trying to raise awareness. They are trying to Yeah. hold community-based programs so that more and more people are made aware about this problem, that it is stroke is now treatable. पहले stroke मतलब death sentence ही होता था. Right, अभी right. अभी बिल्कुल. with good and good treatments, we are able to provide good treatment options and good results to the patients. Most important thing is timely detection, timely arrival at hospital. Right, Right. right. Shruti, you can unmute yourself. You have a question? Yeah, thank you, sir. Thank you for the wonderful session. So my husband had a stroke 4 years back, and that was an ischemic stroke. And as you said through the session, there was a decompressive craniotomy performed. Right. Then later on, his own bone flap was replaced within 3 months.
through cranioplasty. So my question is basically related to the scan. What do the latest scans reveal? Do they show any improvement, or like after the cranioplasty is performed and the person is stabilizing, what other care do you suggest we take at home? And what else do we require to go in for a regular checkup or an annual checkup, or what care do we take frequently? तो बेसिकली एक बार क्रेनियोप्लास्टी हो गया है तो न्यू स्कैन्स का जरूरत, जब तक कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू शो ओल्ड स्ट्रोक के चेंजेस जो आपके थे। क्रेनियोप्लास्टी के बाद स्कैन का यूजुअली जरूरत नहीं है, अनलेस उनको कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं। कई बार वो साइट का बराबर से केयर नहीं हुआ है तो वहां पे इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का रिस्क रहता है, तभी नए स्कैन्स करे जाएंगे। अदरवाइज रूटीन स्कैन्स का जरूरत नहीं है। एंड रेगुलर फॉलोअप भी न्यूरोसर्जन से बीच बीच में जरूरी है, सो दैट at 6 months or at 12 months, if they want, they can reevaluate from their point of view. Otherwise rehabilitation ही important है। Regular frequent follow-ups for controlling risk factors like blood pressure है, sugar है, उसके लिए जरूरी है। ऑलरेडी जो स्ट्रोक से रिकवरी जितना भी आया है, यूजुअली 3 months इज द टाइम वी सी। 3 months के बाद कितना रिकवरी आया है, दैट इज वी टेक एज बेसलाइन रिकवरी। आज ट्रीटमेंट हुआ तो कल का रिकवरी वी विल नॉट टेक एज द रिकवरी। आज से 3 महीने बाद जो रिकवरी है, दैट वी विल टेक एज द फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट। Fine. I think it was a wonderful presentation. Amit Saab, thank you very much for your Thank you so much. Time. We did talk of about 40-45 minutes, but we have well exceeded that. I know that we are past 10. So very much, बहुत shukriya. And I'm sure it will be very useful. बाद में भी, whoever sees it. And of course, on the group also, I would request you, जब भी कोई queries आती हैं, or maybe in the future also, we can have similar presentations, and we will be in touch for sure. So thank you very much for your time. Thank you everyone. And I'm closing the meeting now. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Any queries we can always discuss on the group. Yes, Thank for you so sure. much, That sir. is what I would request everyone. And of course, you are there. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.